Hello everyone, welcome to Stay Update presented by JK Rakhan. So friends, latest update is coming from Indian Coast Guard official website related to the official notification of Assistant Commandant of Batch 2nd 2022. So all those candidates who have completed their BE BTech in electronics, mechanical and different branches, and all those candidates who have simply qualified their bachelor, that is graduation, in any streams, all those candidates are eligible to apply under this assistant commandant second batch 2022. So in this video friends, we shall discuss comprehensively what will be the educational qualification criteria for general duty, for engineering cadre, and also for the commercial pilot cadre. And then after we shall discuss that what is the age required in order to apply under this official notification of assistant commandant second batch 2022, and what will be the age relaxation that will be given to the reserved category students for SC, ST and OBC, and from which date the official online link of this application form will be available on the Indian Coast Guard official website, what will be the application fees, so on and so forth. All the details friends we shall discuss in this video in a very comprehensive manner, and then after at the end we shall discuss that what will be the selection criteria on which basis you will get shortlisted for the SSB interview, and SSB interview consists of how many stages. All these details friends we shall discuss in this video. So friends, we are going to start this video in a bilingual way so that each and every candidate can understand the content in a very comprehensive and optimum way. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसकी सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू इवेंट्स के नीचे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट सेकंड बैच 2022 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपकी डायरेक्टली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करेंगे। यू कैन सी हियर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, कॉमर्शियल पायलट एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल सेकेंड बैच 2022। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी the online application form date is 6th of December 2021 to 17th of December 2021. Then after friends, your e-admit card, your online admit card will be available on the Indian Coast Guard official website on 28th of December 2021 for those candidates who get shortlisted for the preliminary selection. What is preliminary selection? We shall discuss in the selection process at the end of this video. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर द असिस्टेंट कमांडेंट इज ग्रुप ए गस्टेड ऑफिसर इन इंडियन कोस्ट गार्ड, एंड यू कैन सी हियर देर आर 3 branches. You can see here first is a general duty, commercial pilot entry, and last is a technical in engineering and electrical. तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ड्यूटी के अंडर आपकी यहाँ पे जो एज है वो आपकी 1 जुलाई 1997 से लेके 30 जून 2021 के बीच में होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट्स किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी से, तो उनके लिए यहाँ पे रिलैक्स सेक्शन फ्रेंड्स रहेगा, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए जो अनरिजर्व है उनका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स पे या फिर इन दोनों डेट्स के बीच में फॉल करना चाहिए। और इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल मेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई भी आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में, बीए, बीएससी, कोई भी डिग्री आपने कर रखी है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी कंप्लीट डिग्री में मिनिमम 60% कंप्लीट डिग्री में फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक आपका यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद एक यहाँ पे और भी कंडीशन रहेगी, आपके मैथ और फिज़िक्स में जो आपका +2 होती है, आपकी इंटरमीडिएट लेवल होता है जिसमें आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें से 2 सब्जेक्ट आपकी फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में आपके मिनिमम जो है 60% होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और फिज़िक्स को मिला के। ये एग्रीगेट नहीं है, सिर्फ फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स को कंबाइन करना है, आपको एग्रीगेट लेना, और उसकी परसेंटेज आपकी 60 से अबव होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कमर्शियल पायलट एंट्री के अंडर मेल फीमेल दोनों यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का। कमर्शियल पायलट एंट्री के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। यहाँ पे फ्रेंड्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपके कम से कम 60% होनी चाहिए, दोनों को कंबाइन। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनके पास यहाँ पे वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए।
उसके बाद थर्ड यहाँ पे आप ब्रांच देख सकते हैं, टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल में रहेगा। इसके अंदर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल रहेंगे। इंजीनियरिंग डिग्री आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास होनी चाहिए। सेक्शन ए और सेक्शन बी जो हम यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे, सेक्शन ए इंजीनियरिंग ब्रांच, सेक्शन बी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच रहेगा। तो आपकी इंजीनियरिंग में डिग्री जो आपने कर रखी है उसमें आपकी कम से कम 60% होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ध्यान दें, आपकी बीई बीटेक पास होनी चाहिए कौन कौन सी स्ट्रीम में, नावल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मेरीन, ऑटोमोटिव, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन या फिर मेटलर्जिकल डिज़ाइन या फिर एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस में अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने अपनी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर इन में से किसी भी ब्रांच में कर रखा है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स कंडीशन सेम रहेगी, आपकी कम से कम 60% फिजिक्स और मैथ में 12th लेवल में आपके होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया, 12th आपने नहीं किया, डायरेक्टली डिप्लोमा के बाद आपने लेटरल एंट्री के थ्रू बीई बीटेक डिग्री की है तो आपका यहाँ पे डिप्लोमे में, कंप्लीट डिप्लोमे में 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन का आप यहाँ पे क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं कि एज का यहाँ पे कितने ड्यूरेशन रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे रिलैक्स सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे अपर एज लिमिट के लिए फ्रेंड्स रिलैक्स सेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स रिलैक्स सेक्शन में फॉल करते हैं वो यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि कितने रिलैक्स सेक्शन यहाँ पे उनको रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं, डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसीज रहेंगी और डिफरेंट कैडर वाइज आपकी यहाँ पे क्या वैकेंसी रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अब आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे रहेगी। तो सिलेक्शन फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सबसे पहले जब आप स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर लेते हो उसके बाद आपने जो मार्क्स अपने बीई बीटेक में ले रखे हैं उसके परसेंटेज के बेसिस पे आपको प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, जिसमें आपकी PPDT और आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट कंडक्ट होगा। ये दो आपके वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होते हैं जो SSB में कंडक्ट होते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रीलिमिनरी सिलेक्शन जो आपका एक दिन का रहेगा सबसे पहले आपको उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो स्टूडेंट्स का मेरिट में नाम आएगा। तो जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में जाएंगे जिसमें आपका PPDT रहेगा और साथ में आपको उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी रहेगा। ये दोनों होने के बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। आपके यहाँ पे 4 सेंटर रहेंगे जहाँ पे आपका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन हो सकता है, जो आपका टेस्ट रहेगा PPDT और आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा स्टेज 2 के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज 2 में आपके जो टेस्ट रहेंगे, साइक टेस्ट रहेगा, ग्रुप टास्क रहेगा और इंटरव्यू रहेगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रेंड्स कंडक्ट होगा और जब आपकी ये स्टेजेस रहेंगी उस दौरान आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक बार आपके इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाएंगे। तो 6 दिसंबर 2021 के बाद फ्रेंड्स आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है फिल होना शुरू हो जाएंगे और 17 दिसंबर 2021 को फ्रेंड्स आपकी लास्ट डेट रहेगी इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और आपके जो एडमिट कार्ड है प्रीलिमिनरी सिलेक्शन स्टेज 1 के लिए वो आपके 28 दिसंबर 2021 से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ से डायरेक्टली अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका लेटेस्ट अपडेट जो असिस्टेंट कमांडेंट सेकंड बैच 2022 इंडियन कोस्ट गार्ड के अंडर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो चुकी है। सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस की हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है तो आप डायरेक्टली फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन के अंडर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।